मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत जसंग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ किया है आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। तो आचार्य भगवान समयसार में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को दिखाकर उस पर दृष्टि कैसे एकाग्र हो सके उसका मार्ग बताकर जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। समयसार शास्त्र का प्रयोजन ज्ञायक का परिचय करके ज्ञायक में लवलीन होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग प्रकट करके उसका फल मोक्ष की प्राप्ति कराने का है। समयसार में जीव जीव अधिकार चलता है। जीव जीव अधिकार में जीव का स्वरूप और अजीव का स्वरूप उसका श्रद्धान और ज्ञान करके दोनों के बीच में भेद ज्ञान करके दोनों के बीच में भेद रूप श्रद्धान करके अजीव पर से दृष्टि हटाकर जीव यानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का प्रयोजन है। उसमें 49 गाथा चलती है। 49 गाथा में अव्यक्त का बोल चलता है। अव्यक्त के बोल में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव वो एक अव्यक्त है, दूसरा सब व्यक्त है।
फिर से, आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव अव्यक्त है। दूसरा सब कुछ का अर्थ है विश्व के 6 द्रव्य हो, वो व्यक्त है। कर्म का उदय हो, वो व्यक्त है। कर्म के उदय में जुड़ने से कसाय आदि उत्पन्न होते हैं, वो भी व्यक्त है। कसाई को जानने वाली वर्तमान ज्ञान की पर्याय वो भी व्यक्त है। और व्यक्त और अव्यक्तपना दोनों जिसमें प्रतिभास होते हैं, ऐसी पर्याय भी व्यक्त है। और जो बाह्य अभ्यंतर जो अनुभव होता है, वो भी व्यक्त है। तो अव्यक्त कौन है? अव्यक्त आत्मा का शुद्ध स्वभाव। फिर से गुजराती में, અવ્યક્તના બોલ ચાલે છે। આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ તેને અવ્યક્ત કહેવો છે। બાકી બધું વ્યક્ત છે। બાકી બધું એટલે વિશ્વના 6 દ્રવ્યો, એટલે કે જ્ઞેય પદાર્થો, જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્ય, સંખ્યા અપેક્ષાના અનંત આનંદ દ્રવ્ય, એ બધું વ્યક્ત છે। કર્મનો ઉદય પણ વ્યક્ત છે। કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા અનંત પ્રકારના કસાઈ ભાવો એ પણ વ્યક્ત છે। વર્તમાન પર્યાય કે જે કસાઈનું જ્ઞાન કરે એ પર્યાય પણ વ્યક્ત છે। વર્તમાન પર્યાય ક્ષણિક છે અને વ્યક્ત છે, પણ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એ અવ્યક્ત છે। વ્યક્તપણું અને અવ્યક્તપણું એ બંનેને મિશ્રિતપણે જાણનારું જ્ઞાન એ પણ વ્યક્ત છે। અને બાહ્ય અભ્યંતર
જે સ્પષ્ટ અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ અનુભવ પણ વ્યક્ત છે. તો અવ્યક્ત કોણ છે? તો કે અવ્યક્ત આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ અવ્યક્ત છે. अब अव्यक्त के बोल में एक बोल हुआ है, दूसरा बोल देखो. कसायों का समूह, कसायों यानी मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, पुण्य पाप आश्रव बंध, दर्शन मोह चारित्र मोह, એ બધા કસાયોના સમૂહ જે એટલે કસાયો. એક એક શબ્દનો અર્થ ખ્યાલમાં આવે તો આચાર્ય ભગવાન શું કહેવા માગે છે એનો ખ્યાલ આવે. પેલા એક એક શબ્દ શું છે જાણવા, એનો યથાર્થ અર્થ શું છે, પછી આખા વાક્યનો અર્થ શું છે, પછી આ બોલમાં આચાર્ય ભગવાન શું સિદ્ધ કરવા માગે છે. એ જે સિદ્ધ કરવા માગે છે એનું ફળ શું છે, એ સિદ્ધ કરવા માગે છે એ ત્યાગવા જેવું છે કે ગ્રહણ કરવા જેવું છે. એ જે સિદ્ધ કરવા માગે છે એ વાત નો અર્થ પૂર્વ અને પછીની ગાથાઓ સાથે એનો શું સંબંધ છે? જે સિદ્ધ કરવા માગે છે એ આ અધિકારનો મૂળભૂત હાર્દ કાયમ રાખીને એનો અર્થ થવો જોઈએ. અને પછી આખા શાસ્ત્રનું હાર્દ જળવાય એને ધ્યાનમાં રાખીને અર્થ કરવો જોઈએ. એટલું કરે તો પણ આપણું જ્ઞાન તો સ્થૂળ છે. સૂક્ષ્મ જ્ઞાન તો ક્યારે કહેવાય? કે જે સિદ્ધ કર્યું એની પ્રયોજનની પ્રાપ્તિ સુધી જીવ સફળ થાય અને જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરી
જીન શાસન એટલે મોક્ષ માર્ગ પર્યાયમાં પ્રગટ કરે ત્યારે ઉપયોગ સૂક્ષ્મ થયો કહેવાય. તો અવ્યક્તનો 2 નંબરનો બોલ ચાલે છે. કસાયો નો સમૂહ, જે એટલે કસાયો, ભાવક ભાવ, ભાવક એટલે કર્મનો ઉદય, ભાવક એટલે કર્મનો ઉદય, ભાવકનો ભાવ એટલે કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતો વિકારી ભાવ, કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતો વિભાવ, કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા કસાય ભાવો, કર્મનો ઉદય આવ્યો એ ભાવક, એમાં જીવ જોડાણો તો કસાય ઉત્પન્ન થયા. તો ભાવકનો ભાવ કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી, કર્મનો ઉદય અજીવ, અજીવમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતો ભાવ પણ અજીવ, એ ભાવકનો ભાવ વ્યક્ત છે. વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ રૂપ છે, વ્યક્ત છે. વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ રૂપ છે. તેનાથી એટલે ભાવકના ભાવથી જીવ એટલે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ, અન્ય એટલે જુદો, અન્ય એટલે જુદો, અન્ય એટલે પૃથક, અન્ય એટલે ભિન્ન. તો ભાવકનો ભાવ આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવથી અન્ય એટલે જુદો, પૃથક છે. તો ભાવકનો ભાવ એ વ્યક્ત અને આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ અવ્યક્ત છે. કસાય ભાવો એનું વેદન, મોહ રાગ દ્વેષનું વેદન, ક્રોધ માન માયા લોભનું વેદન, શુભાશુભ ભાવનું વેદન, એ પ્રત્યક્ષ અને વ્યક્ત છે. પણ એ વેદનમાં છુપાયેલો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ અવ્યક્ત છે.
फिर से हिंदी में। प्रथम वाक्य का एक एक शब्द उसका अर्थ समझना चाहिए। बाद में रज्जू भाई, हाँ जी, ये जो कषाय भाव हुए तो मतलब ये कर्म का उदय आया और उसमें हम जुड़े, तो जो हमारा जो भाव है वो व्यक्त कहलाएगा और अजीव कहलाएगा। हाँ। क्यों? कैसे? कि ये कौन सा अधिकार है? जीव जीव। जी, जीव जीव अधिकार में क्या कराना है? दोनों में भिन्नता करानी है। दोनों में भिन्नता करानी है। हाँ। तो इस वाक्य में आप जीव किसको कहेंगे, अजीव किसको कहेंगे? हाँ, कर्म का उदय तो 100% अजीब है, लेकिन हाँ उसमें मैं जो मेरे भाव हुए वो भी अजीब कहलाए। हाँ। क्यों हुआ है? तो जीव की सत्ता में भाव, कसायो उत्पन्न हुआ जीव की सत्ता में, और कसाय है भी चेतनवंत। फिर भी आपने अजीव क्यों कहा, ऐसा आपका प्रश्न है। हाँ, वही। तो कर्म का उदय का लक्ष्य करने से कसाय उत्पन्न होता है कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके कसाय उत्पन्न होता है। वो तो कर्म के उदय का लक्ष्य करेंगे तो ही होगा। हाँ, तो कर्म का उदय है, उसका लक्ष्य करने से यानी अजीव का लक्ष्य करने से कसाई उत्पन्न होता है। ऐसा सिद्ध करने के लिए कसाई भाव को अजीव कहा। बराबर, थैंक यू। तो क्या है देखो कि पहले एक एक शब्द का अर्थ करना है, बाद में वो पूरे वाक्य का अर्थ करना है, बाद में वो वाक्य में क्या सिद्ध करना है। वो वाक्य में जो सिद्ध होगा वो पूरे अधिकार का हार्द ख्याल में रखकर सिद्ध करना है, और वो वाक्य का अर्थ पूरा शास्त्र जो सिद्ध करना चाहता है उसका ख्याल करके अर्थ निकालना है। समझ में आता है? देखो एक प्रयोग इसमें करते हैं कि इस वाक्य में शब्द का अर्थ किया कसायों का समूह। तो कसायों किसको कहते हैं? मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, शुभाशुभ भाव, आश्रवबंध भाव, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई। और ऐसा कसायो अनादि से अज्ञानी को प्रति समय उत्पन्न होता है। तो कसायों का समूह जो, तो कसायों का समूह
भावक भाव, कसायों को समूह को भावक भाव कहा। तो भावक क्या और भावक का भाव क्या? तो भावक कर्म का उदय है और कर्म के उदय में जुड़ने से जो भाव उत्पन्न होता है उसको भावक का भाव कहते हैं। पुण्य कर्म का उदय आया, उसमें जीव जुड़ा तो शुभ भाव उत्पन्न हुआ, वो भावक का भाव है। पाप कर्म का उदय आया, उसमें जीव जुड़ा तो व्यापार आदि का चिंतन किया, वो अशुभ भाव भावक का भाव है। पुण्य के उदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की तो पुण्य प्रकृति के उदय में जुड़ने से उच्च प्रकार का शुभ भाव हुआ, फिर भी वो विभाव है, विकार है, भाव का भाव है, कसाय है। तो भाव का भाव व्यक्त है, व्यक्त है यानी प्रकट रूप है। उसका वेदन भी होता है, उसका ज्ञान भी होता है। मुझे क्रोध आया, उसका ज्ञान होता है। मेरी दशा में शुभ भाव चल रहा है या तो अशुभ भाव चल रहा है, उसका ज्ञान होता है। वो शुभाशुभ भाव के कारण जो उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ और उसका इंद्रिय सुख का वेदन हुआ, वो भी व्यक्त है। ऐसे जो कसाई भाव है उसमें छुपा हुआ कसायों से रहित आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसको जीव कहा। और वो जीव अव्यक्त है। अव्यक्त क्यों कहा? कि वो ज्ञायक स्वभाव की तुझे प्रतीति नहीं हुई, उसका ज्ञान नहीं हुआ, उस पर दृष्टि उपयोग की स्थिरता नहीं हुई। दृष्टि ने ज्ञायक को विषय नहीं बनाया, ज्ञान उपयोग ने भी ज्ञायक को विषय नहीं बनाया। तो उसका अस्तित्व होने पर भी, विद्यमानता होने पर भी उसकी विद्यमानता का स्वीकार नहीं किया, इसलिए अव्यक्त है। तो देखो, कर्म के उदय में जुड़ने से जो कसाई उत्पन्न होता है वो वास्तव में तो जीव की पर्याय है।
लेकिन उसको अजीव क्यों कहा? तो कि जीव अजीव अधिकार में आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को जीव बताना है। और कई स्थानों पे आत्मा के शुद्ध स्वभाव को अनुसरण करके जो शुद्ध पर्याय प्रगटती है उसको जीव कहेंगे। बाकी सब अजीव। पांच अजीव पदार्थ तो अजीव है, लेकिन मेरे जीव के लिए दूसरे अनंत जीव भी अजीव है। हूँ पूरे विश्व की बात न करूं, लेकिन मुझे जिसके साथ संबंध है या तो जिस संयोग में मैं हूं, इतनी भी मैं बात करूं तो पूर्व कर्म के फल में मुझे जो संयोग मिला, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, भाभी, जो कुछ कुटुंब में मिला वो भी मेरे लिए पर है, अजीव है। पूर्व कर्म के उदय में जमीन मकान मिला, सोना चांदी मिला, धन धान्य मिला, बर्तन कपड़े मिले, दास दासी मिला, वो भी मेरे लिए अजीव है। शरीर मिला, पांच इंद्रिय मिली, द्रव्य मन मिला पूर्व कर्म के उदय में, वो भी अजीव है। सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय में आते हुए कर्म, नया कर्म का बंधन, वो भी अजीव है। और वो कर्म के उदय में जुड़ने से कसाई उत्पन्न होते हैं, भावक भाव उत्पन्न होते हैं, उसको भी अजीव कहा। अजीव क्यों कहा? कि विश्व के पांच अजीव द्रव्य उसका लक्ष्य करने से तेरी दशा में विभाव उत्पन्न होने वाला है। तेरे अलावा अन्य अनंत जीव उसका लक्ष्य करने से भी तेरी दशा में कसाई उत्पन्न होने वाला है। निस्बत वाली दुनिया में पूर्व कर्म के उदय में जो संयोग में माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई भाभी, बहन आदि जो कुछ मिला है, उसका लक्ष्य करने से भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। पूर्व कर्म के उदय में जमीन मकान, सोना चांदी, बर्तन कपड़े,
धन धान्य दास दासी जो मिला उसका लक्ष्य करने से भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। और जो शरीर 5 इंद्रिय द्रव्य मन मिला उसका लक्ष्य करने से भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका चिंतन करने से भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। उदय में आते हुए कर्म उसमें जुड़ने से भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। नया कर्म का बंधन कैसा होगा उसका विकल्प उसका लक्ष्य करने से कसाई उत्पन्न होने वाला है। मेरे द्रव्य में मेरी सत्ता में पुण्य पाप आश्रव बंध मोहराग द्वेष क्रोधमान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा 3 प्रकार के वेद मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई योग उसका चिंतन करने से भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। ये सभी को अजीव कहा और ऐसे अजीव का त्याग करना है ऐसा विकल्प करने से भी कसाई उत्पन्न होता है। और स्वसत्ता में तू आ जा तो पर्याय का भेद वो भेदों का चिंतन करेगा तो भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। और तेरी सत्ता में अनंत गुण है उसके भेदों का भी चिंतन करेगा तो भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का चिंतन करेगा उसकी भक्ति करेगा उसकी पूजा करेगा दान आदि करेगा तो भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। शरीर की बाह्य क्रिया में जुड़ जाएगा तो भी कसाई उत्पन्न होने वाला है। उन सभी को अजीव में डाला। वो सभी में से एक के बाद एक बात आचार्य भगवंत कर सकते हैं क्योंकि कथन करने में क्रम पड़ता है। इसलिए प्रथम बोल में 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है उसको व्यक्त कहा, लेकिन तेरे जीव के लिए वो सभी अजीव है तो अजीव को व्यक्त कहा। अजीव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय और वो ज्ञान की पर्याय में छुपा हुआ त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसको अव्यक्त कहा। समझ में आता है? ये तो
भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने भगवान की वाणी सुनकर अपनी श्रुत लब्धि में समाविष्ट करके भरत क्षेत्र में आकर भरत क्षेत्र के भव्य जीवों पर करुणा करके भगवान की दिव्य ध्वनि का सार आत्म अनुभूति के साथ मिलाकर भव्य जीवों पर करुणा करके इस शास्त्र रचना करने का राग उत्पन्न हुआ। वो राग भी कसाई भाव है और ऐसे कसाई भाव से मेरा ज्ञायक भिन्न है, ऐसा भेदरूप श्रद्धान भगवत कुंकुंदाचार्य देव की परिणति में चल रहा है और विकल्प में आकर शास्त्र रचना की है। प्रमत अप्रमत गुणस्थानधारी मुनिराज हो, आचार्य हो, अनेक लब्धि के धारक हो, अनेक रुद्धियों के धारक हो और साक्षात भगवान की वाणी सुनी हो और निकट भवी हो और प्रचुर स्वसंवेदन करते हैं और प्रचुर स्वसंवेदन के समय में ज्ञायक पर दृष्टि की स्थिरता है, प्रतीत कर रहे हैं ज्ञायक को, और अनुभूति के काल में जो ज्ञान स्वभाव को जानता है वो ऐसा निश्चय ज्ञान, और अनुभूति के काल में जो पर्याय को जानते हैं ऐसा व्यवहार ज्ञान, और अनुभूति के काल में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव यानी द्रव्य और पर्याय दोनों को जानने वाला प्रमाण ज्ञान जिसके पास है, ऐसे आचार्य भगवान एक शब्द में ठास ठास कर कितना भरते हैं। श्रुत लब्धि के धारक है। एक समयसार शब्द में पूरा शास्त्र समा लिया, एक नियमसार शब्द में पूरा शास्त्र समा लिया। तो एक शब्द में पूरा शास्त्र का भाव का संग्रह कर सके, ऐसे शक्तिमान आचार्य उसके शास्त्रों का अभ्यास करना, उसमें उपयोग की एकाग्रता चाहिए, उपयोग की तीक्ष्णता चाहिए, उपयोग की निर्मलता चाहिए, तब बात समझ में आती है। क्या कहा?
दूसरे बोल में कसाइयों का समूह जो ज्ञायक स्वभाव अव्यक्त है उससे कसाई भिन्न है। तो स्वभाव और कसाई, कसाई यानी विभाव, तो स्वभाव को जीव और व्यक्त, स्वभाव को जीव और अव्यक्त कहना है। कसाई को अजीव और व्यक्त कहना है। व्यक्त अव्यक्त के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। थोड़ा भी न्याय से, स्थिरता से सोचे तो मालूम पड़े ऐसा विषय है। अगर शब्द भी समझ में ना आए, उसका भाव भी पकड़ में ना आए, तो भाव भाषण तो कब होगा? क्या कहा? कसायों का समूह, हम अज्ञानी जीव अनादिकाल से प्रति समय कर्म का उदय आता है और कर्म के उदय में जुड़कर जो कसाय उत्पन्न होते हैं, ऐसे कसाई को भावक का भाव कहा। एक कार्य जीव का स्वभाव का नहीं है। कसाई उत्पन्न हुआ तो कसाई को उत्पन्न कर सके ऐसा जीव का स्वभाव नहीं है। जब जब कसाई उत्पन्न होता है तब तब कर्म का उदय होता है, और जब जब कर्म का उदय होता है तब तब अगर जीव उसमें जुड़ जाता है तो जीव की दशा में जो कसाई उत्पन्न होता है वो कसाई में कर्म का उदय निमित्त है, ऐसा दिखाने के लिए कसायों को भावक का भाव कहा। भावक का भाव को अजीव कहा, क्योंकि अजीव के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। तो अजीव का लक्ष्य छुड़ाना है, और जीव यानी त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य कराना है। और शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो जीव की सत्ता में जिन शासन प्रकट होगा। जिन शासन किसको कहते हैं? आत्मा की अनुभूति को। आत्मा की अनुभूति किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसको कहते हैं? मोक्ष मार्ग को। मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? कि जिसका फल मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या कहा? कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, इंद्रिय सुख दुख उत्पन्न हुआ। इंद्रिय सुख दुख को जानने वाला ज्ञान
ज्ञान में वो मोह राग द्वेष जानने में आया, इसलिए व्यक्त। वो मोह राग द्वेष का जो आस्वाद आया, इंद्रिय सुख दुख का वेदन हुआ, इसलिए व्यक्त। लेकिन तूने लक्ष्य किया था भाव का, तूने लक्ष्य ज्ञायक का नहीं किया। अगर ज्ञायक को लक्ष्य करते तो ज्ञायक प्रतीत में आ जाता। ज्ञायक स्वभाव का निर्विकल्प ज्ञान हो जाता, ज्ञायक में रमणता हो जाती, तो तेरी दशा में अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता। तो तेरी पर्याय में तेरा ही ज्ञायक ज्ञेय होकर उसका ज्ञान हो जाता, तो तेरा ज्ञायक व्यक्त हो जाता। जो कसाई उत्पन्न हुआ है उसने ज्ञायक को तिरोभूत किया है, और तेरी ज्ञान की पर्याय कसाई में हित लगने से तेरा ज्ञान उपयोग कसाई युक्त हो गया। वो कसाई युक्त ज्ञान उपयोग में ऐसी ताकत नहीं ज्ञायक को जान सके। समझ में आता है? आहिस्ता आहिस्ता आचार्य भगवान विनायक की ओर ले जाना चाहते हैं। पहले स्थूल बात बताई थी पहले बोल में कि 5 अजीव है तुझसे पर है। वो तो द्रव्य क्षेत्र काल से भिन्न थे, और दूसरे अनंत जीव तेरे अलावा वो भी द्रव्य क्षेत्र काल से भिन्न है। वो तो स्थूल भिन्नता है। तुझसे जैसा ये शास्त्र भिन्न द्रव्य क्षेत्र काल से हैं, वैसी तरह अनंत अन्य जीव और जाति अपेक्ष के 5 अजीव द्रव्यों द्रव्य क्षेत्र काल से भिन्न है। उसकी भिन्नता बताकर आचार्य भगवान एक स्टेप और ज्ञायक की ओर ले जाने के लिए भाव का भाव बताया कि कर्म का उदय सूक्ष्म है, दूसरे ज्ञेयों तो की इतनी निकटता नहीं है। कर्म का उदय की तो निकटता है, और कर्म के उदय के साथ तेरा प्रति समय निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, और ऐसा संबंध अनादिकाल से चला आता है। ऐसा जो कर्म का उदय भावक तुझसे निकटवर्ती तेरे परिणाम में निमित्त हो सके, ऐसा भावक यानी कर्म का उदय, वो कर्म का उदय
उसमें से जुड़ने से कसाई उत्पन्न हुआ, वो कर्म के उदय से भी सूक्ष्म है। कर्म का उदय तो द्रव्य क्षेत्र कालभाव से भिन्न है। कसाई तो तेरे असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। पहले शब्द में भिन्नता भासती है कि नहीं? एक कसाई भिन्न क्यों कहा? तो कि सिद्ध पद में कसाई सब निकल जाते हैं। जो तुझसे भिन्न हो जाए, नाश हो जाए, वो तेरा स्वरूप नहीं। और जो अजीव के लक्ष्य से उत्पन्न होवे, वो भी तेरा असल स्वरूप नहीं। कसाई एक समय का, मेरा आत्म स्वभाव त्रिकाल। कसाई तो विभाव है, दुख का कारण है। और आत्म स्वभाव तो त्रिकाल है, और त्रिकाल सुख स्वभावी है। त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और कसाई के बीच में अन्यत्व है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का स्वरूप और एक समय के कसाई का स्वरूप, दोनों का स्वरूप, दोनों के स्वरूप का लक्षण भिन्न भिन्न है। ऐसी जुदाई है। भावक उसका लक्ष्य छोड़ दे तो तेरी दशा में कसाई उत्पन्न नहीं होगा। कसाई नाश हो जाएगा। जो नाश हो जाए वो मेरा स्वरूप नहीं। छह द्रव्यों से नजदीक कर्म का उदय है। कर्म का उदय से नजदीक कसाई है। और वो कसाई की उत्पत्ति जीव के ही असंख्यात प्रदेश में उत्पन्न हुई है। लेकिन वो कसाई आत्म स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वो भिन्न है। वो कसाई विभाव है और मेरा आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, इसलिए वो कसाई भिन्न है। कसाई का वेदन तो दुखमय है। मैं तो स्वभाव से त्रिकाल सुख स्वभावी हूं। इंद्रिय सुख दुख मेरा स्वरूप नहीं। अतीन्द्रिय त्रिकाल शुद्ध सुख स्वभाव वो मेरा स्वरूप है। तो आचार्य भगवंत इस बोल में भावक का भाव, उसको अजीव कहा, कसाई को अजीव कहा, और आत्म स्वभाव को जीव कहा। कसाइयों को व्यक्त कहा, आत्म स्वभाव को अव्यक्त कहा। व्यक्त और अव्यक्त के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। तीसरा बोल कल चलेगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थनायक दिव्य ध्वनिना दातार बाल ब्रह्मचारी श्री महावीर भगवान नो जय हो।
મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે વિશ્વવિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્યધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિવંદર ભગવાનનો જય હો. જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા, પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી, પ્રચુર સ્વસંવેદન કરનાર ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. જય હો. વર્તમાન કાળે વ્યક્ત અવ્યક્ત વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન કરાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો સૂર્યકીર્તિ ભગવાન તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. માતનો જય હો. ભેદ જ્ઞાનમાં નિમિત્ત થઈ શકે તેવી અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં પધારનાર જંબુદીપસ્ય સર્વે જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. જય હો. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષ જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદેહ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમૂહસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય